Students, kindly pay attention. This is our this is our part 2 of chapter 2. Yes, thoughts of management we will be studying. So now the first is thoughts of classical management. The thoughts of classical management presented till the end of 19th century is known as thoughts of classical management. जो भी thoughts of management है जो 19th century से पहले present किए गए थे उनको क्या बोलते हैं? थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी. मेन प्रमोटर्स कौन कौन है? फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वीबर, गिलब्रेथ, हेनरी गैंट एंड हेनरी फियोर. तो ये कौन है? मेन प्रमोटर्स थे. टेलर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसका? फ्रेडरिक टेलर का. Scientific management principles presented by Frederick Taylor also exist in the thoughts of classical theory of management even truly. आज भी वो exist करते हैं. Approach of scientific management favors scientific principles by time and motion study instead of traditional methods. क्या बोलते हैं? Traditional method की जगह पर approach of scientific management ज़्यादा effective होता है. Main contribution of scientific principles lies in the specialization of management, progressive wages system, responsibility and scientific distribution of task. Scientific way में task distribute करना, wages के responsibility, ठीक है, और specialization किस management में, तो इन सब फील्ड में उसका contribution जो है वो बहुत ही अच्छा है. Contribution of Henry Fayol in the thoughts of classical theory is also significant. हेनरी फ्योल ने भी बहुत ही significant way में यानी बहुत importantly contribute किया है. He significantly contributed to the thoughts of management by presenting general principles of management. उसने क्या present किए? General principles of management. He decided levels of different tasks in business. उसने क्या decide किया? हर एक task का level कैसा है and try to decide limits of the task. और task की जो limit है वो decide की. To perform managerial duty at different levels, he also provided universal principles of management as guidelines. Universal principle of management जो है उसको guidelines के तौर पर उसने क्या किया? Provide किया. Apart from this, there is contribution of Max Weber into thoughts of classical theory. Max Weber जो है उसका भी अच्छा रोल है, योगदान है. Till the end of 19th century, formats and size started to change due to industrial revolution. Industrial revolution आया था 19th century में, इसकी वजह से format और size change हुए. As a result, need for changes in it arise due to some limitation of thoughts of the classical theory, like importance of financial motivation, less importance to human approach and informal relation. क्या हुआ कि ये सारे चेंजेस की वजह से देखो बहुत सारे लिमिटेशन भी थे. इन्होंने जो थॉट्स दिए थे क्लासिकल थियोरी में उनके लिमिटेशंस भी थे. लिमिटेशंस की वजह से क्या हुआ कि चेंजेस आए. किसमें? इन प्रिंसिपल्स में. समझ में आ रहा है? कौन कौन से लिमिटेशंस थे क्लासिकल थियोरी के? तो वो दिए गए हैं. इम्पोर्टेंस टू फाइनेंशियल मोटिवेशन, लेस इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन अप्रोच और इनफॉर्मल रिलेशंस. तो ये क्या थे? लिमिटेशंस थे. किसके लिमिटेशंस थे? क्लासिकल थियोरी के. अब हम पढ़ेंगे थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी. टू इम्प्रूव सम ऑफ द लिमिटेशंस. देखो कभी भी कोई भी चीज जो है बाद में चेंज होके क्यों आती है? क्योंकि पहली वाली चीज में कोई ना कोई लिमिटेशन या तो कोई ना कोई डिसएडवांटेज या ऐसा कोई ना कोई कमी होती है. उस कमी को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है. इसीलिए क्या आया? नियो क्लासिकल थियोरी आई, क्योंकि क्लासिकल थियोरी में बहुत सारे लिमिटेशन थे तो उसको सुधारने के लिए. Some management experts made changes and established a new approach which is called as thoughts of neoclassical theory बोलते हैं उसे. ठीक है. At the end of 19th century, industrial revolution आया. आगे के पार्ट में हमने पढ़ा format of units and industries was changed. वो change हो चुका था. The need was arised for new kind of management. नए management के लिए need arise हुआ था. In the start of 20th century, Australian industrial psychologist Elton Mayo's theory of Hawthorne gave a new birth to behavior oriented thought. तो कौन था?
ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट था एल्टन मेयो। उसकी थियोरी ने एक नई थॉट को जन्म दिया। सो एल्टन मेयो को क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। किस चीज का? थॉट्स ऑफ नियोक्लासिकल थियोरी का। थॉट्स ऑफ नियोक्लासिकल थियोरी एम्फेसाइजेस अपॉन ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर, यानी ग्रुप में ह्यूमन कैसे काम करते हैं, इस अप्रोच पे वो ज्यादा डिपेंडेंट है। Additions were made to the thoughts of neoclassical theory like informal organization, human behavior, human relation, inspiration, ये सारे additions लाए गए थे। Etc. are the elements based on thoughts of classical theory. Elton Mayo, Herzberg, Rensis, Linkert, Chirkrish, Argyris, मैग्रेगर, मैश्लो, ये जो है वो बड़े कंट्रीब्यूटर्स है किसके लिए? नियोक्लासिकल थियोरी के लिए, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर थॉट, सोशल मैकेनिज्म थॉट और सोशल अरेंजमेंट थॉट पे बेस्ड है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर थॉट इज एज बिलो। आगे हम पढ़ेंगे थॉट्स ऑफ बिहेवियरल रिलेटेड, ठीक है, बिहेवियर रिलेटेड। हमने आगे देखा कि ह्यूमन बिहेवियर बड़ा इम्पोर्टेंट था, ये अप्रोच इम्पोर्टेंट था। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से थे। तो पहला है थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट भी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवा लेना, ये क्या है? एक आर्ट है ये। किस और ये इस आर्ट को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोफेसर उर्विक ने क्या बोला है? यू मैनेज योर मैन, योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ। तुम खाली अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करो, फिर तुम्हारे एम्प्लॉयज बाकी सारी चीजें क्या कर लेंगे? मैनेज कर लेंगे। लाइकवाइज एम्प्लॉय और अ पर्सन इज हैविंग एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन यूनिट, किसी भी यूनिट में एम्प्लॉय या कोई आदमी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। Since the management is being done by a person, management study becomes a study of interhuman relations। क्योंकि देखो मैनेजमेंट कोई आदमी करता है और वो एम्प्लॉयज वगैरह का करता है, इसीलिए ये क्या बन जाता है? स्टडी ऑफ इंटर ह्यूमन रिलेशंस, यानी ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बन जाता है। मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस। देखो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करते हैं और उनके बीच में रिलेशंस। Hence, human behavior related thought emphasize on, देखो किस चीज पे एम्फेसाइज करेंगे? जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से तो जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं, एफिशिएंटली काम करेंगे, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाना बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कंसेप्ट लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशंस, फिर मोटिवेशन देना एम्प्लॉयज को, लीडरशिप यानी नेतृत्व शक्ति, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे फेंक दिया जाए, आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स। सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, ये पूरा अप्रोच कैसा है? साइकोलॉजिकल है। इट सीम्स दैट इकोनॉमिक पैरामीटर हैज बीन नेग्लेक्टेड। तो ये पूरे अप्रोच में इकोनॉमिक पैरामीटर, पैसा रिलेटेड मेन चीज जो होती है, काम रिलेटेड कुछ आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया? नेग्लेक्टेड हो गया। सम राइटर्स लॉजिकली से ह्यूमन रिलेशंस कैन नॉट बी मेंटेन एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देखो सबसे बड़ा काम किसी भी बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है। और उसके साथ समझौता करके आप ह्यूमन रिलेशंस बढ़ा सकते नहीं हो, तो ये गलत है। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था किसका? ये अप्रोच का, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, इसीलिए कौन सा अप्रोच आया? थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। अ चेंज वॉज अकर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस यूनिट्स आफ्टर 1960। 1960 के बाद क्या हुआ था? चेंज आया था। As a result, a need of special approach of management was arise.
इसकी वजह से एक दूसरा अप्रोच, एक स्पेशल अप्रोच की जरूरत पड़ी। एज मैनेजमेंट इज नॉट कन्फाइनिंग टू ओनली बिजनेस यूनिट। मैनेजमेंट का मतलब खाली बिजनेस यूनिट नहीं होता है। स्पेशल प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर्स वर एमर्ज्ड। देखो अब एक प्रॉपर MBA इन मार्केटिंग, MBA इन फाइनेंस, एक ऐसे मैनेजर खड़े हो गए और उन सब को बिठा दिया। बीच वाले मैनेजर्स थे ये, समझ में आ रहा है? ये वर्कर्स वाले भी नहीं थे और CEO वाले भी नहीं थे, मगर एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्लास एक बीच में आ गया। वेयर एडवोकेसी इन दिस थॉट्स ऑफ फॉर साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नीड। तो ये देखो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन सब ने पढ़ाई की, या मतलब इस पोजीशन पे जिस बंदे को बिठाया उसको किस चीज़ का नॉलेज चाहिए था और इस अप्रोच में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया। साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट गुरुज कौन कौन से? कुंज ओ'डोनल, जॉर्ज आर टेरी हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट्स। उन्होंने इस थॉट्स में कंट्रीब्यूट किया। मोर ओवर पीटर एफ ड्रकर, विलियम आउची, C.K. प्रहलाद हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट्स। उन्होंने भी इसी थॉट्स में कंट्रीब्यूट किया है। स्टूडेंट्स, वी विल एंड आवर लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू।